Books for CLAT Preparation 2022. If you're preparing for CLAT 2022 and you're confused that from which books you should study, how you should study, then this video is meant for you. Let's get into this video. And yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Let's begin with English. So in English, if we see the syllabus, हमारे पास reading comprehension है जो बहुत ही ज़्यादा important है because हमारा जो pattern है अब वो यही है, passages followed by questions, right? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? फिगर्स ऑफ स्पीच इज द सेकंड टॉपिक. अगर हम क्लैट 2020 और इवन सैम्पल पेपर्स उठाते हैं तो फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज सिमिली मेटाफर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट आर देयर. सो वी नीड टू कवर दोज क्वेश्चंस एंड द बेस्ट वे टू डू सो इज ऑनलाइन सोर्सेज. यू फाइंड अ लॉट related to figures of speech, so you really do not need to worry about it, right? Google and you'll find a lot, right? Next is grammar. So firstly, let's talk about number one thing, that is reading comprehension, which book you should go for. So firstly, I've done a detailed video which deals with reading comprehension, wherein I've told you that how you should solve different types of questions. Again, a video you should watch. It will give you a lot of tips, and I want you that for reading comprehension you should know that how you should solve different types of questions. And for that, the book that I'm going to recommend is Verbal Ability and Reading Comprehension by Arun Sharma and Meenakshi Upadhyay. I know this book is for CAT exam, but we have to know the basics of reading comprehension and we have to go in a little detail. Number one. Number two, also the sizes of the passages. You need to check the previous year question paper of CLAT 2020. I'll leave the link to it in the description box below. If I forget, then remind me in the comments. I will give you the link, right? So you need to practice. When you practice, you need to make sure that you know the passage size should be kept in mind, because CAT passages are a little longer while the CLAT ones are shorter. But from this book mainly we are focusing on the basics. Now, which kind of basics? When you see this book, you're going to see that you know there's this whole section which deals with reading comprehension. Whichever book I am telling you here is just a suggestion. I just want to tell you that kin lines pe aapko, on which lines you should buy the book, so that even if you're going for some other, you know that the book should be somewhat like this, right? I always tell you guys that you should visit your nearest bookshop and go there and go through the books and then buy. But in case you do not have that, you know, luxury to go to a bookshop because of the pandemic that we are in, you can buy the books that I'm suggesting. Talking about the grammatical part. Now, if we analyze CLAT 2020 exam, we see that figures of speech, vocabulary questions, and reading comprehension part was the hero. But we cannot leave grammar. Why we cannot leave grammar? Because when we analyze the sample papers or even when we go through the guidelines given by CLAT, grammar will play an important role. That is what they are saying. Unless and until CLAT 2021 happens, we cannot be sure about it. But still, the basic grammar needs to be done because it can be there. So how to cover that? Now, for grammar, there are a lot many books in the market. As for English, basically for competitive exams, there are so many books in the. Firstly, let's see the topics: tenses, articles, prepositions, active and passive voice, modals, concord, subject-verb agreement, verbs, their formation and their usage, spotting grammatical errors in sentences. The book that I usually suggest is S.P. Bakshi. It is a book, S.P. Bakshi by Arihant. S.P. Bakshi by Arihant is the book that I suggest. If we go through the index of this book that is here with us, we have all the topics out here, right? And they have covered it, the basics quite well. They have given the exercises and everything. So this is an easy breezy book. The other options are S. Chand ka book aata hai, Tata McGraw-Hill ka book aata hai. Buy any one for grammar and go through the theoretical part and solve the exercises also. And also another thing I want to tell is that by the end of when you're done with your English, you should have list of rules with you. You should have list of rules of grammar, right? Which can be used as a source of revision, If you do not want to create a list, make sure that when you're reading a topic for the first time, you mark it so well that it is easier for you to revise. You can give a quick revision to all the topics, right?
इफ़ वी गो थ्रू द अरिहंत बुक, तो बेस्ट पार्ट अरिहंत का यही है कि डायरेक्टली सब कुछ दिया हुआ है टॉपिक वाइज, फॉलोड बाय एक्सरसाइजेस। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और साइड पे नोट्स भी बना सकते हो। तो अगर आपको इजी ब्रीजी स्टफ चाहिए तो यू कैन बाय दिस बुक, कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रिमेंबर गाइस, वेन एवर यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ बुक, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स होती हैं वो कभी भी एक एग्ज़ाम को पर्टिकुलर रख कर नहीं बनाई जाती हैं। इवन अगर वो लॉ एंट्रेंस के लिए है तो वो 3 और 5 ईयर दोनों के लिए है। तो आपने अपने एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में क्या आता है वो कंसिडर करते हुए प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो ये बुक मैं आपको दिखाना चाहती थी। उसके बाद बात करते हैं रेन एंड मार्टिन की। तो रेन एंड मार्टिन जो बुक है वो बहुत रिकमेंडेशन में आती है, ठीक है। बट इसकी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। स्टार्टिंग में अच्छी लगती है बट इवेंचुअली जैसे आप सॉल्व करते जाते हो, अल्टीमेटली आप नहीं सॉल्व कर पाते हो इस बुक को। तो अगर आपके स्कूल में ये बुक रेन एंड मार्टिन पढ़ाई गई है, जो कि बहुत स्कूल्स में आजकल पढ़ाई जाती है, then you can go for this book, cover the important topics and you will be done. And if you are going for Renan Martin, then please buy Key to High School Grammar and Composition। Renan Martin की की आती है, जो एक्सरसाइजेस दी होती हैं उनके आंसर्स होते हैं, तो ये ज़रूर बाय कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट बुक जो मैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो आपकी है ये, दैट इज़ वर्ड पावर मेड ईजी। वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लुइस। वोकेबलरी की ये एक बुक है जो कि ये कहा गया है द कंप्लीट हैंडबुक फॉर बिल्डिंग अ सुपीरियर वोकेबलरी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और ये बुक बहुत मोटी है, राइट। तो अब अगर हम वोकेबलरी की बात करें, क्लैट 2020 का पेपर उठाएं, तो नो डाउट वोकेबलरी अगर आपकी अच्छी है तो बहुत हेल्प करेगा। बट डायरेक्ट क्वेश्चन हमें वोकेबलरी से कोई भी नहीं आ रहा है। ये नहीं कह सकते कि 25 क्वेश्चन वोकेबलरी के थे। अगर 25 क्वेश्चन के अगर 10 to 15 भी आते तो आई वुड हैव सेड कि भाई जैसे तैसे ये बुक सॉल्व कर लो, राइट। बट ये बुक बहुत ही मोटी है। अगर आप ड्रॉपर हैं और आप क्लैट को 7 to 8 आवर्स दे रहे हैं, मतलब आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्लैट की प्रिपरेशन करना है और कुछ भी नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं, कुछ नहीं है, तो आप ये बुक करने का सोच सकते हैं। या फिर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है मान लीजिए, तो आप ये बुक करने का सोच सकते हैं। नहीं तो मोस्टली बच्चे इस बुक को स्टार्ट करते हैं बट एंड नहीं कर पाते। इससे अच्छा वोकेबलरी कवर करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप न्यूज़पेपर में से वोकेबलरी पढ़ना स्टार्ट कर दें, और उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी करी हुई है, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। Maths. Now we know that maths can be divided into two. That is maths, elementary maths up till 10th, and the second one is data interpretation. Data interpretation is also going to be there. That is volume and surface area, statistics, basic algebra, average, percentage, ratio, proportion, time and distance. So the book that I'm going to suggest is Maths 18 Days Wonder by S. Chand. Right, the new book is like this. It is Numerical Ability 18 Days Wonder by S. Chand and the authors are also same. मेरे पास पुराना वर्जन की ये बुक है। अगर हम इस बुक में देखें तो इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, और प्रैक्टिस में भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के कवर हो जाते हैं और विद सॉल्यूशंस ये बुक है, राइट। अब ये बुक मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ये पूरी की पूरी क्लैट के लिए सॉल्व कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो ही सॉल्व करने हैं। सारी की सारी बुक अगर आप सॉल्व कर देंगे और इसमें से आप अपने फॉर्मूलाज मार्क कर लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। 18 डेज वंडर बाय एस चंद है ये बुक, राइट। अगर आप ये बुक ही बाय कर रहे हैं तो इसके साथ में मैं आपको कहूँगी कि 10th का मैथ्स का PDF होगा, ऑनलाइन बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। उसमें से आपने स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये मैथ्स की बुक है मेरे पास, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप PDF में से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है वो आपने सॉल्व करना है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, प्लस एक क्वेश्चंस होंगे आपके सर्कल्स पे। सरफेस एरिया वॉल्यूम आपका 18 डेज वंडर में से कवर हो जाएगा। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का टॉपिक और स्टैटिस्टिक्स आपने 10th की NCERT में से सॉल्व कर लेना है विद 18 डेज वंडर। अगर आप ये कॉम्बिनेशन रखते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक बाय RS अग्रवाल। बहुत बच्चे कहते हैं कि दी वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हमें क्या इसमें से सॉल्व करना चाहिए, ये क्लैट के लिए अच्छी है या नहीं। देखिए, इट इज़ अ वेरी गुड बुक, बट प्रॉब्लम वही है, बहुत ही लेंदी बुक है। बट अगर फिर भी आपने ये बुक खरीद ली है तो जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, या फिर मैं 18 डेज वंडर का इंडेक्स मेंशन कर दूंगी आपके लिए, आप वो वाले टॉपिक्स इसमें से सॉल्व कर लीजिए बस, राइट। एंड इसके अंदर एक और चीज़ भी है, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट भी दिया हुआ है, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट दिया हुआ है, बट अगेन डाटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम ये आती है, ना तो इन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी हुई है, ना ही इन्होंने टाइप सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, ना ही कुछ और, तो सिर्फ क्वेश्चंस है, नथिंग एल्स। तो अगर आपके पास ये बुक है
और आप यही बुक यूज़ करना चाहते हैं, 18 डेज़ वंडर नहीं बाय करना चाहते, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करके आप ख़त्म कर सकते हैं। कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। सो इन डाटा इंटरप्रिटेशन यू हैव टू कवर टॉपिक्स लाइक दैट ऑफ पाई डायग्राम, बार ग्राफ, टेबुलर डायग्राम, लाइन ग्राफ। देखिए बुक है डाटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड बाय ऑलिव बोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये बुक देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने 4 बुक्स ऑर्डर करी थी, सारी बैठकर सॉल्व करी है, एंड उसके बाद मुझे अब लग रहा है कि ये बुक है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। इस बुक में 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 के अंदर बेसिक चार्ट्स हैं, सेक्शन 2 के अंदर डाटा एनालिसिस है, सेक्शन 3 में मेंस लेवल डाटा इंटरप्रिटेशन है। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 से हमें कुछ लेना नहीं है, सेक्शन 1 ही हम सॉल्व करेंगे, राइट। और सेक्शन 1 के अंदर भी सबसे पहले इस बुक का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा बेसिक चार्ट्स का जैसे टॉपिक स्टार्ट होता है बार ग्राफ्स का, तो उसमें पहले सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आएगी। सो प्लीज़ देखिए, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्रैक्टिस योरसेल्फ लेवल 1। तो जो ये लेवल 1 है यही हमने सॉल्व करना है, यही क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस हमारे लिए नहीं बने हैं, लेवल 2 हम नहीं सॉल्व करेंगे। क्लैट में लेवल 1 वाले क्वेश्चन ही आते हैं। ऐसे ही जितने भी टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं आपने वो ऐसे ही सॉल्व करने हैं, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, ठीक है, वैन डायग्राम बेस्ड। अगर आपने करना है तो कर लो, छोड़ भी सकते हो। टैबुलर डीआई और रडार डीआई तो आप करोगे ही। लेवल 1 सॉल्व करना है इस बुक में से सिर्फ, राइट। अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन में अच्छे हो तो आपको ये बुक बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने ऑनलाइन ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ऑनलाइन ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। फॉर लॉजिकल रीजनिंग लेट्स सी द टॉपिक्स: सीरीज कंप्लीशन, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस एंड पजल टेस्ट। लॉजिकल रीजनिंग के लिए ऑब्वियसली फेवरेट बुक यही रहती है, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, राइट। इसके अंदर से जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वही आपने सॉल्व करने हैं। वर्बल रीजनिंग का पार्ट ही सॉल्व करना है, नॉन वर्बल के रीजनिंग वाले पार्ट के पास आपको नहीं जाना, क्योंकि लॉजिकल डिडक्शन वाला जो पार्ट है वो हमने इस बुक में से नहीं करना, क्रॉस आउट, ठीक है। लॉजिक, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स ये वाले जो है वो हम MK पांडे की बुक में से करेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग, द बेसिक ऑफ लॉजिक, assumptions, forcefulness of arguments, inferences, premises and conclusions, strengthening and weakening of arguments, syllogisms, premises and conclusion, cause and effect, courses of एक्शन। ये MK पांडे एनालिटिकल रीजनिंग की बहुत ही फेमस बुक है, वो बुक अभी मेरे पास नहीं है। आपने वो बुक तो करनी ही करनी है, बट हम एक और बुक भी करेंगे, वो है ये वाली बुक, दैट इज़ विलीज एग्जाम एक्सपर्ट GMAT क्रिटिकल रीजनिंग ग्रेल। अब ये बुक देख लेते हैं। इसके अंदर द बेस्ट पार्ट इज़ एंड द बैड पार्ट इज़, ये GMAT के लिए है तो थोड़ी डिटेल्ड है, बट बहुत बच्चों को क्रिटिकल रीजनिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप उसके लिए ये बुक ख़रीद लेंगे तो बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आप बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग से पढ़ना स्टार्ट करिए और आप इतने बेसिक्स डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें कवर होते हैं, तो ये सबसे इजी रहता है। और जो क्वेश्चन टाइप है नो डाउट वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप है, बट आपके पैराग्राफ फॉर्म में भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत सेम से हैं। तो आप वो मतलब आपको थ्योरी चाहिए बेसिकली टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए ये जो बुक है ये आपकी सही रहेगी। This is the book. I'll leave the link to it in the description box. Legal aptitude. Guys, for legal aptitude, I'm again reminding you that I've done a detailed analysis of legal aptitude. अकेला analysis क्या है, तो please watch that video. We have to cover torts, contracts, criminal law, Indian constitution, legal terms and maxims, practicing legal reasoning questions. देखिए लीगल रीजनिंग की जो बहुत ही फेमस बुक है वो है LA and LR AP भारद्वाज की। अब ये बुक मैंने उस वीडियो में भी, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें लीगल एप्टीट्यूड डिस्कस किया था। इस बुक की एक ही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, वो है रेपिटेशन। बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करी हुई है। देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दिया हुआ है, बट यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दिया हुआ है, ठीक है। तो रिपीटेड बहुत है ये बुक, इसकी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है वो है ये, दैट इज़ लीगल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए हुए हैं 2008 से लेकर 2019 तक, जो कि हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस बुक के लिए जा सकते हैं। मैंने एक वीडियो करी हुई है जिसके अंदर मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं बताऊँ कि कौन से टॉपिक्स आपने सिर्फ पढ़ने एंड यू विल बी डन। तो अगर आपके पास ये बुक है तो ये इनफ है लीगल रीजनिंग के लिए। और अगर आप ये बुक के लिए नहीं जाना चाहते, आपको
लग रहा है कि बहुत रेपिटेशन है, तो फिर आप जा सकते हो ये वाली बुक के लिए। विली की बुक है ये, LALR, राइट। ये भी एक अच्छी बुक है, बट इसकी एक ही प्रॉब्लम है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे लिए कि हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हर टॉपिक के बाद अराउंड 50 मेरे ख्याल से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो या तो आप पता क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, या तो अकेली ये वाली बुक ले लीजिए। अगर ये नहीं लेनी है आपको, ये लेनी है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्लैट के प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और उसमें से आप अपने जो लीगल रीजनिंग सेक्शन है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं अपना। Okay. Talking about current affairs, obviously newspaper is the source and is a very, very important source which should not be missed. You can choose between the Hindu or the Indian Express. Both are equally good. If they're not available in your area, you can subscribe for e-newspaper. Right, you have to make notes every day. This is an option. If you're not making notes every day, then make sure that you have a revising source. When I say revising source, I want to make you think of the days when it's just 1 month left for CLAD and you want something from wherein you can revise. And the best way to learn current affairs is to revise it again and again and again. So if you're not writing your notes, then I suppose that you're creating a source by itself. It could be a printed source from a coaching institute or a magazine wherein you are noting down your notes, or you're marking and making your short notes in the book itself, in the magazine itself, so that you can go back and revise again and again, right? That is what I want to say. If you're not still clear with the concept, then you should watch the video, should you make notes or not. I'll leave the link to it in the description box below. It is very important to read newspaper and to read a monthly current affairs magazine, because we tend to miss out on certain important pieces of news that we should not miss out on, and for that we need to go for a current affairs magazine. You can go for GK Today, you can go for IS Vision, you can go for Pratyogata Darpan, News and Events. Any of these books, you should go through them once and then decide that which one is the best. Only one current affairs magazine is enough. You don't need to study more than one current affairs magazine. And even if you are studying current affairs magazine, it is very important to read the newspaper, because no one can take the place of reading the newspaper, because CLAD pattern is such. You need to develop the habit of reading and reading and reading without getting bored, and you have to develop the habit of comprehending unknown articles. So the best way to do so is by reading newspaper every day.